Dear students, in last video we have discussed different type of properties like atomic properties and physical properties of oxygen family. Now today we will discuss about chemical properties of oxygen family of 16 group elements. In chemical properties of 16 group elements, first of all we will discuss about oxidation state. So today first topic, that is oxidation state of 16 group element. Yes, the general electronic configuration of 16 group element, that is NS2 and NP4. When we observe this valence cell electronic configuration, then we find that there are 6 electrons in the valence cell. So it can gain 2 electrons from other one and accept and complete their octet. So we can say all the elements show -2 oxidation state of this group. Now oxygen, if we write the oxygen, sulfur, selenium, tellurium and polonium, if we see the oxidation state of each element, then we find that oxygen always show -2 oxidation state, though sulfur in many cases also show -2 oxidation state. Polonium is very difficult to show -2 oxidation state. But when we move from top to bottom in this group, then we find that except oxygen, all the elements, especially sulfur, selenium and tellurium, +2, +4 and +6, now +2, +4 and +6, +2, +4 and +6 oxidation state is shown by sulfur, selenium, tellurium and polonium. But oxygen do not show these 3 oxidation state. It is because all the elements, sulfur, selenium, tellurium, polonium, they can extend the electrons in the vacant d orbitals. It means in sulfur, selenium, tellurium और पोलोनियम में d ऑर्बिटल वैकेंट होते हैं, तो इस कारण से 6 इलेक्ट्रॉन तक यानी कुछ इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के वैकेंट d ऑर्बिटल में चले जाते हैं, जिसके कारण से ये +2, +4, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं. बट ऑक्सीजन डू नॉट शो प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सेप्ट OF2. OF2 में ऑक्सीजन केवल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, तो ऑलवेज रिमेंबर. और साथ ही साथ O2F2 इसमें ऑक्सीजन +1, +1, -1 and -1. So we can say in O2F2 and OF2, oxidation state is +1 and +2 respectively. Now sulfur show +2, +4 and +6 oxidation state. To understand this, we take an example, that is sulfur equal to 1s2, 2s2, 2p, 6, 3s2, 3p4, and now you know here 3d0. There are 3 electron vacant. Now देखिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4 and 3d0. अब अगर हम देखें इसमें, जब इसमें 3p, you know 3s, 3p, 1, 2 and this one 3d, s 1, 2, 3 and 4, यानी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो हमने इसमें फिल किया. अब देखिए इसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन है,
अगर ये दो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में या किसी कंपाउंड से जब मॉलिक्यूल या कंपाउंड से कोई एलिमेंट से कोई कंपाउंड बनाते हैं, तो अगर दो इलेक्ट्रॉन काम आते हैं तो उस कंडीशन में हम कहेंगे कि इट विल शो ओनली +2 ऑक्सीडेशन स्टेट. बट व्हेन इट विल this electron will excite here, then we can see that there are 4 unpaired electron. In this condition it always show +4 oxidation state. But you know, when s orbital also move from here, then we can say it will participate in the resonance, and 6 oxidation state may be shown by sulfur, selenium, tellurium and polonium. So this is for oxidation state. Oxidation state में केवल आपको इतना ध्यान रखना है, ऑक्सीजन show only -2 oxidation state, oxygen do not show +2, +4 and +6 oxidation state. Why? इसका आपने पहले वाली वीडियो अगर देखा हो तो उसमें आपको समझ में आ गया होगा. क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन में कभी भी डी ऑर्बिटल वेकेंट नहीं होते हैं. डी ऑर्बिटल होता ही नहीं है. कैसे? जब अगर मान लीजिए हम ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें, तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम यहाँ तक लिखेंगे 1s2 2s2 2p4. यहाँ कभी भी 2d नहीं बनता है. इसलिए हम कह सकते हैं ऑक्सीजन डू नॉट शो +2, +4 एंड +6 ऑक्सीडेशन स्टेट. ये क्वेश्चन जनरली पूछ भी लिया जाता है कि ऑक्सीजन +2, +4 और +6 वाले कंपाउंड नहीं बनाता, केवल +2 में एक कंपाउंड बनाता है, दैट इज OF2. अदरवाइज कोई कंपाउंड ऑक्सीजन से नहीं बनता है. तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ऑक्सीजन ऑलवेज शो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ओनली इन OF2, अदरवाइज इट विल शो ओनली -2 ऑक्सीडेशन स्टेट. क्लियर? ऑक्सीडेशन स्टेट में के बाद में हम देखते हैं व्हाट आर द कंपाउंड्स व्हिच इज फॉर्म्ड बाय द 16 ग्रुप एलिमेंट्स. सो हाइड्राइड्स में यू नो, अगर इस ग्रुप के एलिमेंट को मैं E से रिप्रेजेंट करूं और उसकी रिएक्शन H2 गैस से कराऊं, तो आपको मालूम है EH2 टाइप के हाइड्राइड्स बनाते हैं. और जहां E इक्वल टू क्या होगा? E इक्वल टू होगा R और ऑक्सीजन, सेलेनियम, सल्फर यहाँ कर दीजिए, यहाँ सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम. पोलोनियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसलिए इसके हाइड्राइड नहीं बनते हैं. क्लियर? सो ऑलवेज रिमेंबर, वी विल डिस्कस हाइड्राइड ओनली फॉर ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम एंड टेल्यूरियम. सो ऑलवेज रिमेंबर, इफ वी राइट हियर हाइड्राइड्स H2O, H2S, H2SE एंड H2TE, देखेंगे कि इन हाइड्राइड्स की क्या प्रॉपर्टीज होती है. सो नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्राइड्स. वैसे तो देखा जाए तो 4 प्रॉपर्टीज हाइड्राइड्स की होती है. इसमें सबसे पहला है थर्मल स्टेबिलिटी. सेकेंड एसिडिक कैरेक्टर, थर्ड रिड्यूसिंग नेचर, एंड फोर्थ वन मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. नाउ थर्मल स्टेबिलिटी की अगर बात करें, सबसे पहले तो थर्मल स्टेबिलिटी टेम्परेचर देने पर वह उसका कितना स्टेबल होता है उसके बारे में जज किया जाता है. थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स इन ऑफ 16 ग्रुप एलिमेंट्स, तो हम देखते हैं कि सबसे पहले जैसे जैसे इन 16 ग्रुप एलिमेंट्स ऑक्सीजन, सल्फर, H2O, H2S, HTE एंड H2PO, इसको तो छोड़ ही दीजिए. क्यों? क्योंकि PO इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट. नाउ इसको देखिए, H2O, H2S, H2SE एंड H2TE. जब इसमें देखते हैं तो हम देखते हैं कि ऊपर से नीचे जाने पर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज होती है. अब ये डिक्रीज क्यों होगी? बिकॉज ड्यू टू increase in
साइज। आप देखिए ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम और टेलुरियम। इस ग्रुप में H2O, H2S, H2SE यानी ऊपर से नीचे जाते हैं तो हम देखते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑलवेज डिक्रीज। अब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी यानी बॉन्ड डिसोसिएशन का मतलब HOH, इस बॉन्ड को तोड़ने में हमें कम एनर्जी लगानी पड़ेगी, और जब एनर्जी कम लगानी पड़ेगी इसका मतलब है कि थर्मल स्टेबिलिटी, थोड़ा टेम्परेचर देते ही ये अनस्टेबल हो जाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं टॉप टू बॉटम जब भी देखते हैं थर्मल स्टेबिलिटी ऑलवेज डिक्रीज, तो हम वी कैन से थर्मल स्टेबिलिटी ऑलवेज डिक्रीज down the group of these हाइड्राइड। केवल आपको इतना याद रखना है कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीज होती है। अब ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीज क्यों होती है? क्योंकि ऊपर से नीचे जाते हैं, साइज बढ़ता है। साइज बढ़ता है तो हाइड्रोजन और जो सेंट्रल एटम है उसके बीच में जो बॉन्ड है वो बहुत ही लूज होता है, जिसके कारण इसे थोड़ा टेम्परेचर देते ही वो क्या हो जाता है? अनस्टेबल हो जाता है। अतः हम कह सकते हैं थर्मल स्टेबिलिटी ऑलवेज डिक्रीज डाउन द ग्रुप ऑफ दीज हाइड्राइड्स। तो पहला पॉइंट दैट इज थर्मल स्टेबिलिटी। नाउ सेकंड पॉइंट दैट इज एसिडिक कैरेक्टर। अगर एसिडिक कैरेक्टर देखें तो आप सभी जानते हैं कि आर्हेनियस के हिसाब से, आर्हेनियस, आपने आर्हेनियस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस पढ़ी है। आर्हेनियस के हिसाब से एसिड वो एलिमेंट होते हैं या वो कंपाउंड होते हैं जो कि H+ आसानी से देते हैं, यानी कि जलीय सॉल्यूशन में या वाटर में क्या करते हैं? H+ आयन देते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर इसकी बात करें EH2, और वी कैन से, क्योंकि इसकी में E की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो हम यहाँ लिख सकते हैं H2E। ये क्या करता है? H+ प्लस EH He-। ठीक, इसी प्रकार सेकंड, अब ये भी क्या है? He-, He- अगेन H+ प्लस E2-। सो हम ये कह सकते हैं कि ये H+ आसानी से दे देते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि डाइप्रोटिक एसिड होते हैं। क्या होते हैं ये? डाइप्रोटिक। डाइप्रोटिक क्यों? क्योंकि 2 H दे रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि एसिडिक कैरेक्टर की अगर बात करें इन ग्रुप H2O, H2S, H2 सेलेनियम, H2Te, डाउन द ग्रुप एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज। एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होते हैं। तो बताइए एसिडिक कैरेक्टर इस सिस्टम में इंक्रीज क्यों होते हैं? इसका कारण क्या है? इसका कारण भी सेम वही है कि ऊपर से नीचे जाते हैं, साइज बढ़ती है, और जैसे ही साइज बढ़ती है H+ ये आसानी से डोनेट कर सकता है। क्यों? बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम हो जाती है, जैसा कि आपने इसमें पढ़ा। तो हम ये कह सकते हैं कि जब भी हम जाएंगे ऊपर से नीचे इन हाइड्राइड्स में तो हम कह सकते हैं एसिडिक कैरेक्टर ऑलवेज इंक्रीज होते हैं। क्यों इंक्रीज होते हैं? क्योंकि ये H+ जल्दी से डोनेट कर सकते हैं। क्लियर? प्रॉपर्टीज दैट इज रिड्यूसिंग नेचर। Reducing nature of this group hydrides H2O, H2S, H2SE, H2Te always increase, always increase। तो हम ये कह सकते हैं reducing nature down the group always increase। We can write here increase down the group। क्यों? क्योंकि इसका कारण यही है कि जैसे जैसे अपन ऊपर से नीचे आते हैं साइज बढ़ जाती है, लेकिन वाटर डू नॉट शो रिड्यूसिंग नेचर। H2O डू नॉट शो रिड्यूसिंग
nature. So we can say except water, all the hydrides of this group show reducing nature, and this reducing nature always increase down the group because bond dissociation enthalpy always decrease down the group due to increase in size. Same रीजन वो का वो इसमें आ रहा है. नाउ लास्ट वन दैट इज फोर्थ, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करें तो इस ग्रुप के हाइड्राइड्स में चूंकि H2O का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है, लेकिन उसके जस्ट बाद जैसे ही H2S की तरफ जाते हैं तो ये बहुत ज्यादा ड्रॉप हो जाता है, यानी बहुत ज्यादा कम हो जाता है. अर्थात H2S के बाद, तो यहाँ H2S के बाद H2S, H2TE, SE, H2TE, इसमें अगर देखें तो H2O का सबसे ज्यादा होता है. तो हम यहाँ लिखते हैं H2O इज ग्रेटर देन. उसके बाद जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते हैं, यहाँ से नीचे आते हैं, अभी देखेंगे वाटर का ज्यादा क्यों होता है, लेकिन जैसे ही यहाँ से नीचे आते हैं तो आप देखिएगा सल्फर, सेलेनियम और टेलुरियम, इनका मास, एटॉमिक मास बढ़ता जाता है. और जैसे ही एटॉमिक मास बढ़ता है इसका मोलिकुलर मास बढ़ जाता है. मोलिकुलर मास बढ़ने से वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की क्वांटिटी ज्यादा हो जाती है, वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाते हैं, जिसके कारण से इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट H2S से H2TE की तरफ आते हैं तो ये इंक्रीज होते हैं. लेकिन यहाँ पर वाटर का इनसे सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है. इसका सबसे सिंपल रीजन है हाइड्रोजन बॉन्ड. तो वी कैन राइट हियर ड्यू टू H bonding in H2O, its NP and VP is हाईएस्ट. और जैसे ही H2S से H2TE की तरफ जाते हैं NP और BP बढ़ जाते हैं. क्यों? क्योंकि साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ने से मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है, और मॉलिक्यूलर मास बढ़ने से वन टू वन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है. तो हम इसका NP और BP का जो ऑर्डर लिखेंगे वो लिखेंगे H2TE, H2. तो ये देखिए यहाँ पर H2O क्या है, H2O जो सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट वाला हाइड्राइड है. उसके बाद H2TE, H2SE एंड H2S. सिंपल सी बात है कि H2O का जब भी बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होने की बात आती है तो हमेशा याद रखना है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग. बट ऑलवेज रिमेंबर, अगर ये वाटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो इसी कारण से यह लिक्विड होता है, जबकि H2S में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पाया जाता, इसलिए ये गैस होता है. तो जनरली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि H2O इज लिक्विड बट H2S इज गैस, व्हाई? तो सिंपल सी बात है कि H2O में जहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड एब्सेंट होता है वही वाटर में HOH, OH, ये हाइड्रोजन बॉन्ड ये. तो हम ये कह सकते हैं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर में प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण से ये लिक्विड होता है. दैट्स ऑल.